بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ نبی پاک کی نشانیاں بتائی تھی اور وہ تینوں بالکل ویسے ہی پوری ہوئی تو کیا آپ سننا چاہیں گے کہ وہ کون سی تھیں؟ ذرا سوچئے، ایک صحابی رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوئے اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی باتیں بتائیں جن سے پوری دنیا ہل اٹھی، اور وہ باتیں آج ہمارے سامنے تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ اتہاس کی وہ حقیقت سنیے جس نے نہ صرف رومن اور فارسی سلطنتوں کو ہلا دیا بلکہ اسلام کی انصاف اور برابری کی اصل تعلیمات کو پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ سوچئے، وہ دور جب پوری دنیا میں غلاموں کی قیمت نہ تھی، اسی وقت اسلام نے ایک کالے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی عزت دی کہ انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید سے سب کے سامنے سوال کیا اور وہ سر جھکا کر جواب دینے پر مجبور ہو گئے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن اسلامی تاریخ میں ایک ایسی جنگ ہوئی جو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ ہزاروں رومن سپاہی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور بس 15,000 مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے وہ کارنامہ کر دکھایا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے قیامت کی کچھ نشانیاں سن لو۔ میری وفات اور اس کے بعد بیت المقدس یروشلم کی فتح، اور پھر ایک ایسی مہاماری آئے جو مسلمانوں کو بڑی تعداد میں شہید کرے گی۔ یہ حدیث جس انداز میں بیان ہوئی تھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ چند ہی عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ کی وفات سے کچھ سال بعد ہی مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ متحہ قادسیہ اور دوسری عظیم جنگوں میں فتح حاصل کی۔ ایک طرف مسلمانوں نے پارشین امپائر کی راجدھانی مدائن کو فتح کیا تو دوسری طرف رومن سلطنت کا دل بیت المقدس جسے یروشلم کہا جاتا ہے مسلمانوں کے قدموں میں آ گیا۔ اس حصے کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن مسلمان یہیں نہیں رکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے فوجیں الگ الگ گروپس میں تقسیم کی گئیں۔ ایک جماعت حضرت ابو عبیدہ اور سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ترکی کی جانب روانہ ہوئی، جبکہ دوسری جماعت حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں فلسطین کے علاقے غزہ کی فتح کے لیے نکل پڑی۔ وہی غزہ جہاں آج بھی اسلام کی جڑیں موجود ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ فل اسپیڈ سے بڑھتے چلے گئے، اور چھوٹی بڑی جنگوں کے سلسلے کے بعد مسلمانوں نے یہ تمام علاقے فتح کر لیے۔ مگر ان سب جنگوں میں ایک جنگ بہت اہم تھی، بیٹل آف دا آئرن برج۔ یہ رم اور قادسیہ کی طرف ایک بڑی جنگ تھی۔ رومن امپائر ہزاروں کی فوج لے کر دریا کے کنارے کھڑا تھا، اور دوسری طرف مسلمان صرف 15,000 کی تعداد میں حضرت ابو عبیدہ قیادت میں۔ سبحان اللہ، یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ جیسے ہی دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، رومن فوج نے اچانک دیکھا کہ ایک دوسری فوج ان کی سائڈ سے تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور یہ فوج کس کی قیادت میں تھی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ سیف اللہ نے اس دریا کو کب اور کیسے پار کیا، مگر جیسے ہی وہ پہنچے، اللہ کی مدد سے رومن کو ایسی شکست دی کہ وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی رومن سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ جنگ سیریا میں مسلمانوں کی آخری جنگ ثابت ہوئی، اور اس کے بعد شام، سیریا، فلسطین، جارڈن اور لیبنان مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ وہیں رہنے لگے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومن سلطنت کے دل ترکی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، اتنے بڑھے کہ قسطنطنیہ کے قریب جا پہنچے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب وہ اتنے قریب پہنچ چکے تھے، اس شہر کو فتح کیوں نہ کیا؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، کیونکہ وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اسلام اور خلافت کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے قائم ہے۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ اور بھی یہ بھی ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شاعر کو 10,000 درہم انعام میں دیے۔ جب یہ خبر حضرت عمر تک
पहुंची तो उन्हें गुमान हुआ कि शायद यह पैसा मुसलमानों के बैतुल माल से दिया गया है। उन्होंने फौरन एक खत भेजा जिसमें 3 सख्त हुक्म लिखे। खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज के सामने पेश किया जाए, उनसे पूछा जाए कि यह दिरहम अपनी जेब से दिए या बैतुल माल से। जवाब चाहे जो हो, उन्हें आर्मी से डिसमिस कर दिया जाए और फिर फौरन मदीना शरीफ बुला लिया जाए। यह बहुत बड़ा इम्तहान था, क्योंकि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्स थे जिनसे रोमन और फारसी बादशाह तक कांपते थे। मगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह जिम्मेदारी अजीम सहाबी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी। जहां हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के हुक्म और खिलाफत की इज्जत को बचाते हुए ये जिम्मेदारी पूरी की। अबू उबैदा रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ही नर्म और दिल और सॉफ्ट मिजाज इंसान थे। उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ दर्जनों जंगें लड़ी थीं। दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह एक दूसरे के करीब थे। मगर वक्त आया जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस महफिल में खड़े हुए और सबके सामने खालिद बिन वलीद से सवाल किया, ऐ खालिद, हमारे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब ये जानना चाहते हैं कि तुमने जो 10,000 दिरहम उस शायर को दिए थे वो अपने जेब से दिए थे या मुसलमानों के बैतुल माल से। यह सुनकर खालिद बिन वलीद और महफिल में बैठे हुए सब सहाबा हैरान रह गए। हजरत बिलाल ने दोबारा सवाल किया, खालिद बताओ, ये दिरहम तुम्हारे निजी माल से दिए गए या बैतुल माल से? आखिरकार खालिद बिन वलीद ने सर झुकाकर कहा, ये मैंने अपने माल से दिए थे। ये जवाब देकर वो अपने सिपाहियों की तरफ वापस चले गए। यहाँ एक गहरी बात सोचने लायक है। उस दौर की दुनिया में गुलाम, खासकर काले गुलाम, कोई इज्जत नहीं होती थी। उन्होंने जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। मगर देखिए इस्लाम की इंसाफ पसंदी रूहानी बराबरी को आज ये वही फार्मर ब्लैक गुलाम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी महफिल में खड़े होकर उस दौर के सबसे ताकतवर जनरल सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद से सवाल कर रहे हैं। और खालिद जैसे शेर दिल भी अल्लाह की शरीयत के सामने झुक गए। यह हकीकत साबित करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे का नूर इस्लाम में पूरी तरह चमक रहा था। किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। वह खालिद बिन वलीद तो अपने सिपाहियों के पास लौट गए, मगर अबू उबैदा इब्न जर्राह ने उन्हें यह बात बता ही नहीं पाई कि खलीफा उमर के खत में 2 और बातें भी लिखी थी। पहली कि खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से डिसमिस किया जाए, दूसरी कि उन्हें फौरन मदीना भेजा जाए। मदीना में हजरत उमर इंतजार करते रहे। जब कई दिन गुजर गए और खालिद न पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि अबू उबैदा ने खत पूरा नहीं सुनाया होगा। लिहाजा हजरत उमर ने दूसरा खत सीधे खालिद बिन वलीद को भेजा कि तुम फौज से डिसमिस कर दिए गए हो और फौरन मदीना आ जाओ। खालिद बिन वलीद ने यह जब खत पढ़ा तो वो दोबारा अबू उबैदा के पास पहुंचे। पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि खलीफा ने मुझे फौज से निकाल दिया है? अबू उबैदा ने फरमाया, ऐ खालिद, इसमें मेरा कोई दखल नहीं, ये सब अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है। आखिरकार सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद शाम की फौज छोड़कर मदीना की तरफ रवाना हुए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने उन शहरों का रुख किया जिन्हें उन्होंने खुद फतह किया था। लोग उन्हें देखकर बाहर निकल आए और उनका इस्तकबाल किया। वहां उन्होंने अपना आखिरी खुतबा दिया, लोगों को अलविदा कहा और फिर सफर करके मदीना पहुंचे। जैसे ही मदीना पहुंचे और हजरत उमर के घर की तरफ जाने लगे, रास्ते में ही उनकी मुलाकात हो गई। सोचिए वो मंजर, एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा जनरल अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद। हजरत उमर ने पहले ही फरमाया, खालिद, तुमने जो किया वो काम आज तक कोई न कर सका, मगर याद रखो जो भी होता है वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होता है। दोनों महान हस्तियों के दरमियान एक बड़ा ही खुला और सच्चा मुज़ाकरा हुआ। खालिद ने शिकायत, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हजरत उमर ने फरमाया, पहले ये बताओ तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने एक शायर को 10,000 दिरहम दे दिए? खालिद ने कहा, ये मैंने अपनी जेब से दिए। तब हजरत उमर ने हुक्म दिया कि खालिद बिन वलीद के माल का पूरा हिसाब लिया जाए। सहाबा की जमात बैठी और गवाही दी कि खालिद का हिसाब बिल्कुल साफ है। फिर भी हजरत उमर ने उन्हें फौज से हटा दिया और सारे गवर्नरों को खत भेजा। मैंने खालिद को किसी खयानत पर नहीं बल्कि इसलिए हटाया ताकि मुसलमान जान लें
जंग किसी इंसान की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से जीत जाती हैं। इसके बाद खालिद बिन वलीद लौटे, मगर एक आम सहाबी की तरह, और जिंदगी वहीं गुजार। लेकिन जैसे ही ये सब मसला खत्म हुआ, उसी वक्त सीरिया में जो बीमारी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी वो इतनी तेज और खतरनाक हो चुकी थी कि हर घर में लोग उस बीमारी से मरने लगे। यहाँ तक कि यह बीमारी मुसलमानों की फौज के कैंपों तक पहुंच गई और बहुत सारे जाबाज सिपाही इस बीमारी में शहीद होने लगे। जब मदीना मुनव्वरा में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह खबर पहुंची तो उन्होंने फौरन एक खत मुसलमानों के आर्मी चीफ हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ भेजा। उन्हें मदीना आने का हुक्म दिया। लेकिन जब यह खत हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ा तो उन्हें अंदाजा हो गया कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं ताकि यह बीमारी उन्हें न पकड़ सके और वह बच जाएं। मगर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए जवाब दिया कि मैं इस मुश्किल घड़ी में अपने सिपाहियों को अकेला छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। अगर मुझे भी इनके साथ मरना पड़ा तो मैं यहीं मरूंगा। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू उबैदा का ये खत पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। लोगों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, क्या अबू उबैदा का इंतकाल हो गया? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, लेकिन मुझे डर है कि अबू उबैदा जल्द ही हमसे जुदा होने वाले हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आर्मी चीफ हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी बीमारी में शहादत पाई। उनके साथ मुसलमानों की फौज के 25,000 सिपाही भी इस वबा में शहीद हो गए। इन 25,000 में वो जाबाज भी शामिल थे जिन्होंने यरमूक जैसी अजीम जंग जीती, और वही पहले लोग थे जिन्होंने इस्लाम को दुनिया कोनों तक पहुंचाने की बुनियाद रखी थी। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वफात से पहले मुसलमानों का नया आर्मी चीफ हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मंसूब किया। मगर अफसोस, कुछ ही अरसे बाद वह भी इसी बीमारी में शहीद हो गए। उनके साथ ही सीरिया के बहुत से गवर्नर भी इस बीमारी का शिकार हुए। उनमें से एक यजीद बिन अबू सुफियान थे जो हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई थे। अब जब इतने बड़े जनरल और गवर्नर शहीद हो गए तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन इन इलाकों के लिए नए लीडर्स चुने ताकि नौजवान मुसलमानों को सामने आने का मौका मिले और वह उम्मत की रहनुमाई करें। चुनांचे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सीरिया का नया आर्मी चीफ हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया और बाकी शहरों के लिए अलग अलग गवर्नर मंसूब किए। उन्हीं में से एक गवर्नर हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले से ही हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उन सहाबा में से थे जो कुरान करीम लिखा करते थे। अब अपने भाई यजीद की शहादत के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें दमिश्क का गवर्नर बनाया। जैसे ही हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के आर्मी चीफ बने, उन्होंने एक अजीब लेकिन बेहद हिकमत वाला फैसला किया। उन्होंने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम लोग ज्यादा इकट्ठा मत हो, बल्कि एक दूसरे से दूर रहो, आपस की मुलाकातें कम कर दो। यानी बिल्कुल वैसा ही जैसे आजकल कोरोना वायरस के दौर में पूरी दुनिया का सिस्टम चलाया गया था। यह तदबीर कारगर साबित हुई। आहिस्ता आहिस्ता चंद अरसे में यह बीमारी खत्म हो गई। अब आखिरकार मुसलमानों की दोनों बड़ी मुसीबतें खत्म हो चुकी तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद हालात देखने और संभालने के लिए सीरिया तशरीफ किए गए। वहां उनकी मुलाकात नए आर्मी चीफ हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। हजरत अम्र बिन आस हजरत उमर के सामने एक नया प्लान रखा और कहा, अब जब अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हो चुके हैं तो हमें रुकना नहीं चाहिए बल्कि आगे बढ़ना चाहिए और अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए एक नया इलाका फतह करना चाहिए, और वह इलाका था मिस्र। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जो आपको इस्लाम के बारे में रूहानियत की जानकारी देती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो तो इसको लाइक करें और हमारे वीडियो को अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने दीन इस्लाम की जानकारी हो। क्योंकि अगर हम अपना इतिहास जानेंगे नहीं तो खुद को पहचानेंगे कैसे।
اللہ حافظ دوستوں.